right? So NPSH N NPSH available should be equal to 3 meter. It should be 3 meter, right? For 3 meter for QV is equal to 100 meter cube per hour, and it should be above 6 motor for QV is equal to, or it is greater than 100 meter cube per hour. These are the guideline. All right. So try to solve one problem. Let's solve one problem. A centrifugal pump is drawing methanol from underground tank. Operating pressure in the underground tank is 1 atmosphere. Vertical distance between center line of pump and free surface of liquid in the tank is 3 meter. Maximum operating temperature is 50 degrees centigrade. Vapor pressure and density of methanol at 50 degrees centigrade are 400 torr and 785 kg per meter cube. This is the density and vapor pressure. Friction loss in suction line is 1 meter of liquid column. Then calculate NPSH of centrifugal pump. Right? So this is the problem statement. So let me draw first a figure. So here we have this underground tank. Like this. This is the underground tank. All right. Now, the vertical distance between central line of pump and surface of the liquid in the tank is 3 meter, right? So here, if we have level of liquid, so pump is somewhere here, right? Pump is somewhere here. यहाँ पे आपका पंप है, ठीक है? Right? And ये डिस्टेंस है, ठीक है? ये डिस्टेंस है, वो कितना है मुझे? 3 meter. Right? It is 3 meter. All right. So revise આમાં already થઈ જશે. Revise, so don't worry about the revision. All right. ठीक है? So ये 3 मीटर है मेरा, ठीक है? यहाँ पे मेरा है लिक्विड है, ठीक है? ये 3 मीटर है, ठीक है? Now we have given density rho is equal to 785, right, kg per meter cube, right? And vapor pressure PV is equal to
400 torr is given in torr, right? And we have to determine NPSH available. So we know that equation for NPSH is, हमें पता है equation, that is NPSH that is available is equal to HSS. HSS मतलब static suction head, right? Minus HFS. HFS is nothing but head loss due to friction in suction line, because you know that here there will be a friction, okay, यहाँ पे friction होगा आपका, whenever fluid, यहाँ पे fluid flow होगा तो suction line में friction होगा, उसकी वजह से loss होगा, ठीक है, उसकी वजह से loss होगा, so that will be negative, we have to subtract, all right, minus PV, this is the vapor pressure, all right, vapor pressure, and this all should be in meter, ये सब मीटर में होना चाहिए, because it's the head, suction head, all right. Now ये HFS friction loss हमें दिया हुआ है, friction loss in suction line is 1 meter of liquid column, all right. So again HSS is given, right? HFS यहाँ पे मुझे हमें दिया हुआ है, right? HFS is equal to 1 meter, ठीक है, HFS दिया हुआ है, ठीक है, PV भी दिया हुआ है, right? Now HSS is nothing but static suction head, right? Which is equal to HSS is equal to, right? HSS is equal to P plus or minus Z, right? Depending upon the position of a pump, where this P is the pressure on the surface here. This is the P, pressure on this surface, liquid surface, कितना pressure है, which is given as 1 atmosphere, right? This is given as 1 atmosphere. ये एक atmosphere दिया हुआ है, ठीक है. Now here pump is above the surface, liquid surface. So here Z is the negative, क्योंकि यहाँ पे पंप को यहाँ पे सक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा, मतलब ये नेगेटिव हेड है, ये आपके क्या हेड नेगेटिव है, यहाँ पे स्टैटिक हेड नेगेटिव है, स्टैटिक हेड, ठीक है. सो इन आवर केस वी हैव it is P, it is P माइनस जेड, ठीक है. अगर मेरा फॉर एग्जांपल पंप टैंक इधर होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इफ माय टैंक इज हियर, अगर मेरा टैंक यहाँ पे होता टैंक, ठीक है, और ये मेरा अगर फॉर एग्जांपल ऐसे सिस्टम होता तो ये मेरा क्या होता है, ये जेड होता अगर फॉर एग्जांपल, तो ये पॉजिटिव आता, ये पॉजिटिव होता, ठीक है. पर ये क्या है कि पंप अबोव है, ठीक है, मतलब टैंक नीचे है, इसलिए ये जेड नेगेटिव आएगा. दिस शुड बी इक्वल टू P माइनस जेड माइनस H F S, right, minus PV, all right. The P is atmospheric pressure and all the unit must be in meter, ठीक है, must be in meter. So we have to convert a pressure unit into meter, ठीक है. So we know that P is equal to P is equal to 1 atm, atmospheric pressure.
which is equal to 101,325, right? This is Newton per meter square. Okay, so if I want to we have to convert this Newton per meter square into meter, हाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय रो इनटू जी, राइट, दैट विल बी डिवाइडेड बाय रो इनटू जी, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये न्यूटन है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन, राइट, न्यूटन है, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी, राइट, मीटर पर second square. This is Newton, right, per meter square. So this is per meter square. All right, G, kg per kg per meter cube and meter per second square. That is G. So this kg, right, that will get cancel out, right? So here meter square and meter, which is nothing but meter cube, is second square and second square, that will cancel out. So we will have this meter only. All right. Yeah. So here this is equal to 101,325 divided by डेंसिटी दी हो मुझे, कितनी है, इट इज 785 मल्टीप्लाई बाय 9.81, दिस इज इन मीटर, दिस इज इक्वल टू 13.157 मीटर, राइट, पी। ये now z भी दिया हो में, z is equal to this 3 meter, right? This is distance between a central line of pump and level of liquid in a tank, which is 3 meter. So z भी दिया हुआ है, hfs again it is given in meter, ठीक है, so इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, right? So pv, vapor pressure is 400 torr, this torr is again converted into meter, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टॉर्क को किस में कन्वर्ट करेंगे, टॉर्क को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, एंड वी नो दैट 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। आई एम डूइंग हियर 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन per meter square, yeah. So we have 760 this is wrong, this is 1 mmHg, sorry, it is my mistake. This is equal to 1 mmHg, all right. So 760 torr, right, or 760 mmHg or torr is equal to 1 atmosphere. So it is 101,325 Newton per meter square. Then then 400 torr is equal to how much Newton per meter square. So it is 400 multiplied by 101,325 divided by
760. So this is equal to, ये हमारा कितना आएगा, 5328.94. This is Newton per meter square, right? Newton per meter square. Again, this is has to be converted into, ये हमें किस में कन्वर्ट करना है अभी, मीटर में. सो यहाँ पे करते हैं 53328.95 divided by rho g, right? Rho g. So the density is 785 multiplied by 9.81. This is equal to 6.925, and 6.925, right, meter, right, meter. So now we have all the values, so put into this equation. So this is equal to P, that is 13.157 minus Z. Z is equal to 3, this side Z, right? ये मेरा क्या हो गया, 3 minus HFS, head loss due to friction, which is 1 meter. So it is again 1 minus vapor pressure in terms of meter, ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया अभी, which is 6.925, right? So अगर हम कैलकुलेट करेंगे, then it is 2.232 meter of liquid column. ठीक है, तो अवेलेबल पॉजिटिव हेड, सक्शन हेड इज 2.232 meter of liquid column, but as per guideline it should be 3, minimum it should be 3, right? So this pump is not, it should be not installed, okay, above the 3 meter. यहाँ पे 3 मीटर पे हमें पंप है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अवेलेबल पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव सक्शन अवेलेबल इज कितना आ रहा है, 2.232 आ रहा है, राइट? बट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, right? It should be greater than or equal to 3. So this pump is not installed at 3 meter. Okay, so if you want to increase the available positive suction head, then there is only one way. हमारे पास एक ही है, क्या कर सकते हैं हम, ये है, ये जो Z है वो हम कम कर सकते हैं. अगर हम Z कम करेंगे यहाँ पे Z, तो क्या होगा, जो सब्सट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, तो ये मेरा अवेलेबल हेड है वो क्या बढ़ जाएगा. तो हमें पंप है ये यहाँ तक, यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, समवेयर हियर. ठीक है, मे बी यहाँ पे लेट से अगर हम ये 2 करेंगे, 2 फॉर एग्जांपल 2 मीटर पे रखा फॉर एग्जांपल हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ये इट मस्ट बी देन 3.232 ये आ जाएगा. मतलब हम यहाँ पे 2 मीटर पे हम पंप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं. बिकॉज सी फ्रिक्शन में तो थोड़ा और भी इसमें वो 1 मीटर लॉस है, वो भी अभी पाइप का साइज, पाइप की लेंथ कम कर दी यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा मतलब ये कम हो जाएगा. ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, ये वेपर प्रेशर में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो तो फिक्स है, यहाँ पे 50 डिग्री पे डेंसिटी भी फिक्स है. ठीक है, in this way we can calculate the net positive suction head, right? Now
If you have any doubt, then you can ask me now. इसको डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी. सर यस. सर ओलो 2.23 एनपीएस है जाएगा बरोबर. एक 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. स्क्रीन शेयर करो. ओके चलो. हाँ ये आया था हमारा. ठीक है चलो. हाँ तो सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू तुमने શું કીધું? नो जो जनरल गाइडलाइन है. गाइडलाइन वो क्या है? हमारा गाइडलाइन है हमारी कि अगर मेरी 100 फ्लो रेट है, ठीक है, मीटर क्यूब पर हावर है, तो वो है कि मिनिमम मेरा 3 मीटर होना चाहिए मिनिमम. ठीक है. और ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन है, ठीक है, इससे ग्रेटर देन है मतलब 100 से ज्यादा, तो वो क्या कितना होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए. 6 मीटर. ये गाइडलाइन क्यों बनाई गई है? क्यों इतना ही होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये लेवल है, ठीक है, कभी बाय चांस ये नीचे लेवल गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ये हेड है, हेड तो बढ़ेगा ही आपका. कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल कि अभी ये तो नॉर्मल એટલે એની હાઈટ તો ઇન્ક્રીઝ થાય એમ ને. ये हाइट रिड्यूस થશે ક્યારેક. कभी कभी क्या होगा, मान लो कि अभी इतना लेवल मेंटेन किया है, बट कुछ मतलब कंडीशन की वजह से ये मान लो कि ये नीचे गया, ठीक है, ये नीचे गया, तो अवेलेबल हेड तो आपका है, ये माइनस होगा आपका, जेड तो माइनस होगा, तो अवेलेबल हेड कम होता जाएगा ना आपका. समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ये यहाँ पे जेड है. फॉर एग्जांपल कि मान लो कि यहाँ पे ट्रक लोड करता है, ट्रक लोड, मान लो कि ट्रक अभी नहीं आया, तो क्या होगा, ये लेवल मेंटेन नहीं होगा. मान लो कि ये लेवल इतना तक चला गया, यहाँ तक फॉर एग्जांपल, अभी मेरा जेड ये हो जाएगा, ये इतना जेड हो जाएगा, जेड बढ़ गया मेरा, ये मेरा जेड ये बढ़ गया, ठीक है, तो ये यहाँ सबस्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो अवेलेबल है तो उतने भी, उससे भी कम होता चला जाएगा. अगर हेड कम हो गया, ठीक है, तो मतलब क्या कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है, हेड की वजह से प्रेशर कम होता जाएगा, तो आपका क्या होगा, कैविटेशन होगा पंप में. ठीक है. इसलिए ये गाइडलाइन बनाई गई है कि जनरली ये मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए अवेलेबल हेड. સર આપણે એના કરતા લેસ આવ્યું તો એનું ઝેડ કમ કરવું જોઈશે ને. हाँ जेड, जेड हमें जेड कम करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि हम यहाँ पे पंप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ये जेड हम कम करेंगे यहाँ पे. हम यहाँ पे नहीं लगा सकते पंप. अगर मुझे पंप लगाना है तो मुझे हाइट वो मुझे कम करनी पड़ेगी. पंप सक्शन और ये सरफेस की हाइट है वो कम करनी पड़ेगी मुझे. सर ग्रेटर આવી જાય તો શું કરવાનું? तो कोई इश्यू नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना तो अच्छा ही है. तो आपका क्या कि यहाँ पे सक्शन लाइन में वेपर नहीं बनेगा आपका, तो कैविटेशन नहीं होगा आपका. એટલે આ એપ્રોક્સ થી આટલું હોવું જોઈએ એમ. यस मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम 3 to 6. ये 100, अगर 100 से कम है आपका फ्लो रेट, तो वो मिनिमम 3 होना चाहिए. दिस इज अ गाइडलाइन. अगर आपका ये 3 से ज्यादा आता है तो कुछ नहीं, मतलब पंप की पोजीशन सही है आपकी. ठीक है. ओके. पंप डाउन साइड होगा तो यस, पंप डाउन साइड मतलब आई थिंक आप मतलब देखो पंप डाउन साइड रहेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो हेड है वो बढ़ेगा ही. क्यों हेड बढ़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों बढ़ेगा आपका. यस